Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special guest on the show. Her name is Ananya Bhattacharya, and she's a life coach and a food psychology coach. And so far, she has helped 800 plus people to reverse their, root cause problems like PCOS, diabetes, thyroid, and cardiac problem, obesity, depression, anxiety, and much more. So this podcast is going to be all about this. So if you're facing any kind of issue, PCOS, thyroid, any illness, chronic illness, depression, anxiety, then this episode is going to be very important. So make sure to watch it till the end. And even if you are not facing any kind of problem, you just want to live a healthy, happy, and fit life because health is wealth, as you know, then this is also very important for you because right now you seems like you are fit, but if you are consuming anything, whatever you want, no matter like after few days or few months, few years, you might get in trouble. So that's why make sure to watch it till the end because this podcast is going to be all about mindset, problems, illness, and also food. Okay, so make sure to watch it till the end. And Ananya, thank you so much for your time. Thank you so much. I'm Okay, really super Mohit, duper thank excited you. for this episode, and it is going to I'm be glad. amazing. I'm glad Yeah. to be on your platform today. Great. Thank you. So here is my first question. As you said, there was a point when we were having conversation and you told me like, there was a point when you felt stuck even after doing everything right. So can you just take me back to that phase? Like what exactly you were feeling internally? Okay, And huh. yeah, yeah. So externally, of course, I had to do everything normally towards my kids, towards my partner, towards society, as a mother, as a woman. But internally, there was a lot of बोलते हैं ना तूफान चल रहा होता है दिमाग Mhm. में तूफान चल रहा था there was so many questions within me that what is this life for, what am I doing in this life, what is the purpose. इतने साल I was almost working for 22 plus years in corporate, and then suddenly after a layoff I was thinking that what is this happening to me, like I cannot go and search for jobs again at the age of 40 plus. एंड इट केप्ट मी क्वेश्चनिंग कि मेरा पर्पस, लाइफ का पर्पस क्या है. मेरे मेरे अंदर ना एकदम तूफान चल रहा था. It was a big storm that was happening. I started questioning my purpose. I started visiting various spiritual places from Vipassana to this what is that heartfulness meditation in Kanha. I also started doing a lot of yoga, a normal breath work, long deep breaths. बट प्रॉब्लम ये थी कि दिमाग ही शांत नहीं था, तो बाहर से शरीर को शांत करके कोई फायदा नहीं हो रहा था. मुझे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना था जहां मुझे समझ आए कि क्यों मेरे ही साथ क्यों. बट मुझे तब बैक देन मुझे समझ नहीं आया था कि दिस इज फॉर अ रीजन, फॉर अ पर्पस. But now, when I see back, I understand that it was meant to be like that. It was meant to clear my path of unwanted people, unwanted tasks. क्योंकि मैं हर जॉब में हम सभी 9 10 12 घंटे तो एवं ही दे देते हैं, राइट, विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट that kind of time that I'm giving out to somebody else, I'm losing it for the entire life. और वो जो फेज है 22 साल का मेरा, वो वापस नहीं आना है मेरे पास. सो दैट वॉज समथिंग विच वॉज हर्टिंग मी. और हर्ट से भी ज्यादा मैं अपनी सक्सेस को क्वेश्चन करने लगी थी. क्या यही सक्सेस है? घर बार, गाड़ी, बच्चे, सब कुछ था. एवरीथिंग वॉज सेट एज पर सोसाइटल नॉर्म्स, बिकॉज सोसाइटी के लिए ना हर चीज टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. So, according to time, I had everything, but still I was not feeling successful internally because my body and my mind were not in sync with each other. They were not aligned to each other. मैं जो कर रही थी, मैं क्वेश्चन करने लगी थी, मैं क्यों कर रही हूँ. So, yeah, that was the time. Like that is how I was feeling internally. And after getting that transformation, how exactly do you feel now? Like what kind of transformation you have seen within yourself now after, you know, knowing your purpose, knowing your strength and everything.
I wouldn't lie. I'm not, I don't know my purpose 100%, but I definitely know I'm here to help people, हम्म others, you know. So, जो मैं समझ पाती हूँ आप, वो ये है कि मेरे में क्लैरिटी काफी है पहले के कंपैरिजन में. सो हेंस दूसरों को क्लैरिटी में लाने के लिए मुझे बहुत आसानी हो जाती है. So the better part is I can sit with people, ask them their whys, whens, hows to bring them back to their clarity point. क्योंकि जब उनको क्लैरिटी, हर किसी के लाइफ में अगर हमारे पाथ अलाइंड नहीं है हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ, हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही चुपचाप बंदे को आप सेल्स या मार्केटिंग दे दो, कैसे कर पाएगा? वो है ही इंट्रोवर्ट इंसान. वो हम्म इतना ज्यादा दूसरों के साथ घुल मिल के बात नहीं कर पाएगा. So how is that possible that he'll go out with for sales and marketing? He has to communicate, he has to build a rapport, he हम्म has to create a camaraderie, जो कि उसमें वो वैल्यू पॉइंट और बिलीफ सिस्टम है उसकी मिसिंग है. तो ये हम्म सारी जो चीजें है ना मोहित, ये सबको हम बोलते हैं कंडीशनिंग. एक हम्म बच्चा बचपन से अपने फैमिली, अपने एनवायरनमेंट, अपने आस पड़ोस से ना चीजें सीखता है, पिक करता है, उसकी हैबिट्स, उसकी वैल्यूज, उसके बिलीव्स, ये सब हम पिक करते हैं अपने आसपास के, अपने सबसे ज्यादा विश्वासी लोगों से, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहनों से, अपने रिलेटिव से. और जब वो कंडीशनिंग जैसे हम बोलते हैं, ये कंडीशनिंग ही उस बच्चे की परवरिश, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी परवरिश उसी बेसिस पे उसकी कंडीशनिंग बढ़ाती जाती है. नाउ कई बार क्या होता है, कई लोगों को आप देखिएगा आग से डर लगता है, मे बी वो कभी हाथ जल गया होगा उसका, इसीलिए उसको आग से डर है. उसके हम्म आगे उसने कभी आग से काम किया नहीं, उसने वो साहस दिखाया नहीं, या उसके घर वालों ने इतना ज्यादा उसको दबा दिया होगा कि उसने कभी कोशिश भी नहीं की. सो दिस इज ऑल कंडीशनिंग. और ये सब ना यहाँ से चलता है. हमारा जो ब्रेन है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मदरबोर्ड ऑफ आवर बॉडी. हम जैसे उसको चलाएंगे वो वैसा ही चलेगा. जैसे मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं कईयों बार एक्सीडेंट कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कभी ड्राइविंग बंद नहीं की. मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है, चाहे वो बाइक हो चाहे गाड़ी हो. तो चाहे हजारों बार एक्सीडेंट हो जाए, मैं बंद ही नहीं करती हूँ गाड़ी चलाना. क्योंकि मुझे ना वो, मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि तुमको डर नहीं लगता, इतनी बार एक्सीडेंट कर चुकी हो? नहीं लगता. मुझे पता नहीं, वो डर वाला फैक्टर ही नहीं है. बट है कई लोगों को, मैंने देखा वो डर के मारे चलाना ही नहीं मतलब फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते हैं चलाने के लिए. बट मुझ में वो चीज नहीं है. तो दिस इज कंडीशनिंग. And it not always, it does not happen always through your family. It is also your inbuilt wisdom that you're carrying from many lives. सो कई बार क्या होता है, बाहर के लोग रोकते हैं बट आपके अंदर से वो आवाज आती होती है, नहीं मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगी. और कई बार क्या होता है, अंदर से तो आवाज आती है लेकिन बाहर के लोग जब टोकते हैं, हम ना अपने आप को दबा लेते हैं कि नहीं यार, सब मना कर रहे हैं, कैसे करूं, है ना. and दिस इज कंडीशनिंग एंड सिस्टम. बिल्कुल बिल्कुल जी. बिल्कुल. ये जो फियर वाली बात की ना, इससे मुझे एक बात याद आ गई. जैसे आपने बताया, लाइक अब फिर डर तो लगता है, बट स्टिल यू ड्राइव, यू हैव नहीं, मुझे यू डर नहीं लगता. डर इन मैं द ना, सेंस लाइक जब हर्ट होता है, बहुत पेन होता है, तब मुझे लगता है अरे क्यों ही मैंने जोर मतलब ये सब बचपन की बात बता रही हूँ, अब तो नहीं होती एक्सीडेंट, बट एक टाइम, एक फेज था लाइफ में जब बहुत एक्सीडेंट, तब तो मैं खुद गाड़ी बिना चलाए एक्सीडेंट कर चुकी हूँ. फिर मैंने जब खुद चलाया तब भी बहुत एक्सीडेंट्स हुए. लेकिन अब वो नहीं होता है, क्योंकि बचपन में ना थोड़ी सी हम लोगों की भी ना नई नई वो हैबिट होती है चलाने की, नो कंट्रोल, स्पीड, धूम धड़ाका, हम स्पीड भी बढ़ा देते हैं. लेकिन जैसे जैसे एज होती है, आप 3 4 बार गिरते पड़ते हैं अच्छे से, आपको अच्छे से मतलब हर्ट वर्ट हो गए हो, इंजेक्शंस पड़ गए हैं, तो आपको भी सीख मिल जाती है कि भाई जरा आंखें कान खोल करके चलाओ. तो वो चीजें भी आती है, विथ एज मेच्योरिटी भी आ जाती है. तो ये कंडीशनिंग आपकी फिर कैसे हुई? लाइक अब आपको कोई डर ही नहीं है, इवन अब आफ्टर, अब आपको कोई डर ही नहीं है, यू हैव नो फियर. हाँ, मतलब डर मुझे कभी भी नहीं था एक्चुअली. अगर मेरे मम्मी पापा से भी पूछेंगे तो वो लोग भी यही बोलेंगे. मतलब मैंने गलतियां, सेम गलती 4 5 बार की है, जब तक कि मुझे नहीं लगा कि हाँ यार बहुत कर लिया मैंने, अब नहीं करनी है मुझे, यही यही वाला पेन मुझे नहीं चाहिए, तो शुरू में तो मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है. फिर ना
जब मेरे पापा मुझे स्पेसिफिकली बोलते थे कि इसमें ना आपकी भी गलती थी, नो यू डिड नॉट पे अटेंशन, या आपने सामने वाले का अंदाज नहीं किया कि वो ऐसे घूमने वाला था, आपने भी टर्निंग ले ली। सो पापा के बार बार बोलने पे आई रियलाइज ऑफ कोर्स देयर वाज समथिंग व्हिच आई वाज डूइंग ओवर कॉन्फिडेंटली। तो मेरा वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसको थोड़ा सा मुझे दबाना पड़ा, हाँ, कि पहले से आप दूसरों के मूव्स को पहले से अंदाजा कर लो कि हाँ, या तो आप स्लो करो। सो दैट कम्स विथ एज, विथ एक्सपीरियंस, और कुछ गिर पड़ के तो आप सीख ही जाते हैं। बिल्कुल. And I must compliment you for one thing. यस। You said that you were 45 when left your job. Not 45, I was around 42. I'm 45 now. So Okay. yeah, it's already But three you don't years. look like 45. Okay, thank you, but I What am. is your skincare routine or diet plan? This entire session will get over then. स्किन केयर रूटीन इतना खास कुछ है नहीं, नॉर्मल है। खाना भी बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन घर का खाना है। एंड लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स, लॉट्स ऑफ वेजीज, कार्ब्स। हाँ, मैंने रिसेंटली कार्ब्स को थोड़ा कम किया है, बट विथ एज जो है, विमेन की बॉडी हार्मोनल चेंजेस ये सब बहुत हमारे लगे रहते हैं। तो उसको थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ी सी, आई विल नॉट से दैट आई एम इनटू फिटनेस और समथिंग, बट आई लाइक टू स्टे फिट। Hence, I ensure that what I'm eating is good, nurturing, and nourishing. Yeah, बिल्कुल. Okay, now let's get back to the point. Life Yes. coaching के ऊपर ही बात करते हैं. Like Bill. there are a lot of high achievers, those who look successfully inside, and this is what exactly happened with you also. You know, आप outer दुनिया में देखें तो you are super successful, you are doing a high paying job, you are doing a Abs- high paying job and everything. But inside, like you were thinking that is this something I am really meant to do? Or is this my purpose? This is what you used to think. So this is what is happening with a lot of high achiever who Yes. feel True. successful and happy outsidely, but inside, deep inside, like they are crying or they are regretting for their decisions or something like this. मतलब वो खुश नहीं ultimately. So why does it happening? Like what is the specific reason? देखिए, सबके कॉमन स्पेसिफिक रीजन तो नहीं हो सकते मोहित, लेकिन दो चीजें डेफिनेटली हैं जो मैंने जितना समझा है। इसके अलावा भी शायद कई और रीजंस भी हो सकते हैं, बट दो बड़े स्पेसिफिक रीजन जैसे मैंने बोला, एक तो है हमारा वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम अलाइन होना हम जो प्रोफेशन में हैं उसके साथ। Yeah. अगर कोई डॉक्टर की जॉब कर रहा है, लेकिन उसको जैसे एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, लाइक वी ऑल नो, लिया उसके हजारों टेस्ट रन करवाए, अब उसको मेडिसिन और क्या बोलते हैं हमारे, वॉट एवर इट इज डन, क्या बोलते हैं उसको, ओके, जो भी है वो लगाया जाता है, राइट? Are you talking about that injection that we put in नो, nerves? नॉट इंजेक्शन, इट इज बेसिकली ड्रिप। हाँ जी, ड्रिप चढ़ाया Okay, जाता है, drip मतलब ड्रिप in. से ही आपको Yeah, दवाइयां okay. दी जाती हैं। Yeah, I अब got it. दवाई हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म तो आप कितना दवाई खाओगे? जनरली बिल्कुल. आपको कोई भी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोलेंगे ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। अगर किसी को थायराइड हुआ, बोलेगा ये दवाई आपको जिंदगी भर चलनी है। डायबिटीज हुआ तो बोलेंगे जिंदगी भर चलनी है। बट दिस इज सो रॉन्ग। इवन डॉक्टर्स नो कि भाई अगर लाइफस्टाइल पे हम काम करेंगे, अगर हम अपने रूट कॉजेस पे काम करेंगे जहां से कि ये इसकी उत्पत्ति हो रही है, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक डॉक्टर जिसने ऑलरेडी नेचुरोपैथी कर रखा है, जिसको ये बिलीफ सिस्टम है कि भाई नेचर क्योर है, लाइफस्टाइल से क्योर हो जाएगा, तो ये जो इतना कुछ हम तामझाम हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं, ये तो काफी हद तक मतलब दोगलाई है, झूठ भी है, लोगों को दिखाने के लिए भी है। मैं नहीं बोल रही हूँ हमेशा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम सेइंग। सो क्या होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हम दो प्रोग्रेस को अगर हम नापेंगे, तो हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में हमेशा वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम काम करता है, लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा काम करता है हमारी कंडीशनिंग एंड वैल्यूज। अगर हमको बचपन से बोला गया कि तुमको डॉक्टर ही बनना है, आपके घर में पापा मम्मी सब डॉक्टर्स हैं, आपके दादा दादू सब डॉक्टर्स हैं, आपको भी डॉक्टर ही बन के सर्व करना है सोसाइटी को, वो बच्चा अपना वैसा ही कंडीशनिंग कर लेगा कि भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है। आई नो सो मेनी किड्स फ्रॉम माई डॉटर्स क्लास
whose parents were doctors, hence they were forced to be doctors even if they didn't wanted to. सो ये कहीं ना कहीं तो इन्फोर्समेंट आ जाता है। तो आप इन्फोर्समेंट के चलते वो लाइन तो चूज कर लेते हो, लेकिन आगे जाते हुए ना वो आपके या तो वैल्यू सिस्टम में सही नहीं बैठते, या आप जितना कर सकते हो उससे कहीं कम, कहीं ज्यादा कम कर रहे हो। तो Right. आप आपकी जितनी पोटेंशियल वैल्यू है उससे बहुत बहुत ज्यादा कम कर रहे हो। हेंस आपको ना वो अंदर से बहुत चंचल महसूस होता है, विचलित महसूस होता है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। जो मुझे भी महसूस होता था, आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर माई कंपनीज, फॉर माई ऑर्गेनाइजेशंस, बट आई वॉज नॉट डूइंग जस्टिस, बिकॉज हम ऊपर ऊपर से तो करते थे, लेकिन वो फाइनली हम पायलट प्रोग्राम चला दिए, बट फाइनली उसको हम कितने लोगों तक पहुंचा पा रहे थे। देयर वॉज अ ह्यूज गैप between the bosses and then the leadership, then the bosses, then the higher managers and the employee level. सो वो गैप कभी फुलफिल नहीं हो पाती है। और जब फुलफिल नहीं हो पाती है ना, तभी ये क्वेश्चंस हमारे जहन में आती है। या तो हम Yeah. बहुत कम कर रहे होते हैं अपनी कैपेबिलिटी से, बहुत कम, या तो हम जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे वैल्यू या बिलीफ सिस्टम के साथ फिट ही नहीं बैठता। ये दो Yeah. प्राइम रीजन तो मैंने फाइंड आउट किए हैं। बाकी कई और कारण भी हो सकते हैं मोहित। मैंने बस ये कुछ ही सालों में जितना मुझे समझ आया अपने खुद के एक्सपीरियंस की वजह से, उतना मैं आपको बता पा रही हूँ। उससे ज्यादा मैंने मुझे नहीं आइडिया है। The value system, aligning with value system is very important. Even I've seen a lot of reels where people are sharing their, their like experience that they are doing a job in any kind of hospitals, but there is no moral or ethics in any, Exactly. especially in private hospitals, like they are getting some, patients, like there is some appointment, with patient and there is no need of surgery, but still doctors are recommending that hey you need surgery Absolutely. and everything is happening. There are Yes, some because people like who get comfortable with what is happening inside. People don't know, but there are some people who are true to themselves and they feel so sad when they see that this is happening, isn't it? so there are two kinds of people also. See, एक जो देख करके आंख मूंद के रह जाते हैं, Yeah, right. दूसरे सेट होते हैं जो, देखिए, जो आंख मूंद के हैं उनकी भी गलती नहीं है, मैं बोल क्यों रही हूँ। उनको ना नॉलेज भी उतना नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं बिल्कुल होगा, सही बात है। है ना, कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों टेस्ट करा रहे हैं, क्यों, दे डोंट आस्क क्यों, व्हाई, पूछते ही नहीं है। उनको लगता है भाई डॉक्टर भगवान जी हैं, हम कईयों ने ना डॉक्टर को भगवान जी की जगह बिठा के रखा। आई डोंट से नो, बिकॉज देयर आर मेनी डॉक्टर्स हु आर डूइंग अ ग्रेट ग्रेट जॉब, आई Yeah, नो, and there are many doctors who are not doing justice to the kind of job they should be doing. सो क्या होता है, जो वेल रेड नहीं है, जिन्होंने अच्छे से इस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है, जिनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है, वो लोग ना अंधे हो जाते हैं या वो आंखें मूंद लेते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो लोग, वैसे तीन होने चाहिए, ऑन द कॉन्ट्ररी जो पढ़े लिखे हैं वो लोग तो क्वेश्चन करेंगे, वहां पे थोड़ा yeah. सा सब्सटैंशियल बखेड़ा होगा। कुछ है ओवर स्मार्ट भी हैं, मैं इसीलिए बोल रही हूँ ओवर स्मार्ट। कई लोग आते हैं जो ऑलरेडी गूगल में सर्च करके आ चुके होते हैं। मैं तो सिर्फ Hmm. न्यूट्रिशनिस्ट लाइफ कोच हूँ। उनको अगर मैंने कोई कोई खाने के लिए बोला ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, है कई लोग हैं जो बोलेंगे अरे ओट्स, चिया सीड, अरे ये तो खा वेट कम करने में खाया जाता है, ये थोड़ी वेट बढ़ाने में खाते हैं। अब उन्होंने, उनको इतना ही नॉलेज, उनको पता है कि भाई ओट्स खाने से वेट घटता ही है, बढ़ भी सकता है, ये कोई आइडिया ही नहीं है, या उसके और भी कुछ गुण हैं वो उनको पता नहीं है, बिकॉज वो खोखले हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गैदर इंफॉर्मेशन बट दे डोंट हैव दैट डीप डेप्थ नॉलेज। तो वो तीनों सेट के लोगों में जो है ना, वो डिफरेंट टाइप की इश्यूज आती हैं। हिंस, जब आप कोई भी सब्जेक्ट को लेके पढ़ रहे हो, आप सिर्फ नेट पे नहीं, आप बुक्स निकालिए। हमेशा मैं बोलती हूँ गूगल में जो हम फीड करते हैं वही आपको गूगल में, चैट जीपीटी में दिखता है। देर आर सो मेनी बुक्स ऑन विच एवर सब्जेक्ट यू से। आप पब्लिक लाइब्रेरी में चले जाइए, बुक्स पढ़िए, आपको नॉलेज मिल जाएगा। नॉलेज इज इजी टू गैदर, बट उसको उतार के जहन में डीपली उस पर एनालिसिस करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपको उसके Yeah. पीछे लगे रहना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है, जैसे अभी मेरे फादर का बहुत हेल्थ इश्यू चल रहा है, वी आर एक्चुअली अक्यूमुलेटिंग नॉलेज, बट हमको नहीं पता कि अंदर अंदर क्या चल रहा है, वो डॉक्टर ही बता पा रहे हैं हमारे रिपोर्ट देख के।
आई हैव हम्म। नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड, राइट? सो हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, हम सिर्फ नॉलेज गैदर कर सकते हैं, बट अ स्पेशलिस्ट, अ डॉक्टर, अ न्यूरोसर्जन कैन ओनली डू दैट स्पेशल टास्क. We are no way responsible, we are not experts to intervene there, right? बिल्कुल सही बात है। जी. एंड लाइक when we talk about following our purpose, passion, so many people are doing just for the living, but they are not, they know their purpose, उनको वो नहीं, satisfaction नहीं आ रहा है, okay, but still they are doing it, they wanna take the risk। लेकिन फिर फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते, फैमिली प्रेशर इज देयर, लाइक ओके, अगर आप अपने पैशन को, पर्पज को फॉलो करने जाओगे, सो हाउ एवरीथिंग हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज दैट पर्सन इज द ओनली money making kind of machine or ATM machine for the family, you know so how did you manage that family pressure, society का जो pressure, relatives का pressure, because आपने भी you approximately 3 years back you left your job and then you started a completely new journey। obviously job छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, because there are a lot of factors, family, सॉरी टू every। इंटरप्ट, मैंने जॉब छोड़ा ही नहीं था मोहित, मुझे तो बिठा दिया गया था, मुझे बोला था कल से मत अच्छा। आइए. ओके, बट लाइक काफी सारे लोग हैं, दोस्त, जो साइड हसल करना चाहते हाँ, हैं लेकिन कर नहीं साइड पाते, हसल, अपना पैशन फॉलो नहीं कर पैशन पाते फॉलो हैं, करना चाहते हैं. बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर एंड सोसाइटी का जो प्रेशर उनके ऊपर आता है, कि अगर वो नहीं कमाएंगे तो कौन कमाएगा। ओके, ट्रू. चलो आपके केस में तो ये हो गया कि लाइक कंपनी वालों ने खुद मना कर दिया, बट काफी सारे लोग तो अभी भी हैं जो कॉर्पोरेट में है, बट दे आर नॉट हैप्पी, दे आर डूइंग इट जस्ट टू डू इट बिकॉज दे गेट पेड फॉर इट, राइट. एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि even if they decide to follow their passion, how they can handle that pressure, right? So that's what I'm trying to ask So you। what is the question? Question How is to. this, that how to handle that pressure so that family members can also agree कि चलो जो आपको करना है करो, सोसाइटी में के बारे में वो ज्यादा ना सोचे, हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रेशर। So यहाँ पे ना मैं बोलूंगी, ऐसे प्रेशर को या ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे बड़ी आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपकी फैमिली बैकअप की. या। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, चाहे वो हस्बैंड और बच्चे हों, चाहे मम्मी पापा हों, या ससुराल वाले भी हों, है ना, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत तो, कम से कम पूरी फैमिली में कम से कम एक इंसान को आपको साथ में लेते हुए चलना है. क्योंकि आप टोटली उनके अगेंस्ट जाके नहीं कर पाएंगे. अगर पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा दायित्व अगर आप पे है, आप दो काम ही कर सकते हैं. वन, आपका जो डिजिग्नेटेड टाइम है, 9 से 5 आपका काम करने का टाइम है, उसके बाद का जो टाइम है, थोड़ा बहुत 2 घंटे 4 घंटे आप एक साइड हसल स्टार्ट करें, जो आप छोटे छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड करके, आजकल चैट जीपीटी के चलते आप बहुत कुछ बहुत इजीली और सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हैं. तो आप पूछिए चैट जीपीटी को कि ये मेरा पैशन है, ये मुझे करना है. छोटे छोटे वीडियोस डालिए. अभी तो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के चलते हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं, एटलीस्ट इंडिया में तो डेफिनेटली. हम लोग देखते हैं ना, छोटे छोटे जो लोग हॉबीज या छोटी छोटी उनके मतलब पैशन की चीजें जो पहले कर नहीं पाते थे, दिखा नहीं पाते थे लोगों को, अभी बहुत आसानी से वो लोग कई लोगों तक रीच कर पा रहे हैं. So you start making small videos, whether it's art and craft, या तो आप टेक्निकली आप सपोज ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, छोटा छोटा. बट आप देख रहे हैं, आप अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे से नॉलेज बढ़ा रहे हैं, और उसके पॉइंटर्स नोट कीजिए, केस स्टडी दीजिए, अपने एक्सपीरियंस की जर्नी आप डिस्क्राइब कीजिए. आप लोगों को नॉर्मली शुरू में आप ऐसे ही हेल्प कीजिए, फ्री में हेल्प कीजिए, ताकि लोगों तक आपकी जो स्किल है वो पहुंचे, कि हाँ जी, इनमें वो बात है कि शी कैन हेल्प अस. और मे बी यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल कम्युनिटी with 5-10 people who have like minded, सिमिलर बिजनेस करना चाहते हैं. एक हम बहुत सुंदर चीज है इकिगाई में, कि क्रिएटिविटी, आपका पैशन, और जो चीज आप बहुत पसंद करते हैं, वो 3 सर्कल्स बनाते हैं हम लोग. उसका जो मिड पॉइंट है ना, दैट इज द स्वीट पॉइंट, जो आपका बेस्ट अर्निंग कैपेसिटी आपका डिफाइन करता है.
बट आप इकिगाई को भी अगर नहीं भी फॉलो करें, फिर भी आपको जिस जो चीज आपको खींचता है, जो जो आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, उसको आपको समझना है कि आज के दिन में हर कोई हर चीज कर रहा है। आप ऐसे करें कि वो यूनिकली अलग से स्टैंड आउट हो जाए। हम्म। जैसे खाना कई लोग बनाते हैं। मैंने रिसेंटली एक किसी मिड एज्ड मॉम को देखा, वो ना शायरी बना बना के वो खाना बनाती है। दैट मेड दैट काइंड ऑफ कॉट द अटेंशन। कोई एक थे जो जो अपने मेड से करवा रही हैं, शी इज अ इंजीनियर फ्रॉम बैंगलोर, और वो अपने मेड से हेल्दी खाना बनवा रही हैं, एंड शी इज गेटिंग द मेड टू टॉक ऑन द वीडियो। तो आपको क्रिएटिवली सोचना है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, और मैंने कल ही ये एक बुक में पढ़ा कि हम लोग को ना बहुत रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते हैं। हम जहाँ हैं जैसे हैं वहीं पे हमारे पास इतने रिसोर्स होते हैं, हम सिर्फ यूटिलाइज नहीं करते हैं, हम लोगों से हेल्प नहीं मांगते हैं। तो आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। मोस्ट ऑफ अस गेट स्टक, शुरू करने में ही स्टक हो जाते हैं। तो स्टक मत होइए, आप पहला कदम लीजिए, फिर आप लोगों की मदद लीजिए, या आप पहला कदम लेने के पहले आप दो चार लोगों से कनेक्ट कीजिए जो लोग कर रहे हैं आपके जैसे, आपके पैशन की चीजें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे समय निकाल रहे हैं, उनसे पूछिए, उनसे आइडियाज लीजिए। आजकल ना मुझे लगता है एआई के जमाने में स्पेशली, जहाँ की सब कुछ बहुत इजीली आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देता है, बुद्धि दे देता है, बट करने की जो क्षमता है या एक्शनेबल स्टेप्स हैं, आई एम सॉरी, मेरे सामने ना घर में एक वो पेड़ है, और ये कौवे ना बिल्कुल चुप नहीं के रहते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। No problem. डिस्टर्बेंस हो रही है कि यू कैन हियर No, मी? no, 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 there is no sound at all. परफेक्ट। सो आप ऐसे कम्युनिटी बिल्ड जब करेंगे ना, तो आपका जो पैशन है वो बहुत हाईलाइट होके आएगा। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, हमेशा अपने फ्रेंड्स की मदद लीजिए, वो आपका जो पैशन है वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए, कि भाई मेरी एक फ्रेंड ये कर रही है, अगर आप लोगों के पास किसी को कोई ऑर्डर देना है या कोई ये मदद चाहता है, प्लीज इनको कांटेक्ट कीजिए। सो यू कैन स्प्रेड द नेटवर्क थ्रू योर फ्रेंड्स, थ्रू योर Hmm. नोन सोर्सेज। और हमेशा याद रखिएगा, आपका नया बिजनेस हो पुराना बिजनेस हो, आपके फर्स्ट 10 to 20 क्लाइंट्स आपके खुद के कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही आते हैं। तो बिल्कुल। आपने अपने फर्स्ट 20 क्लाइंट्स अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के बना लिए, उनके टेस्टिमोनियल्स बना लिए, उसके बाद तो फिर क्या है, फिर तो वैसे ही लोग आपके पास आएंगे। अगर आपका काम अच्छा है, आपको अपने काम को पॉलिश करते रखना है, करते रहना है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। Yeah. And you were talking about that conditioning जो कि हमारी बचपन से कंडीशनिंग। हो जी जाती है, जी जी जी। right? बिल्कुल And due बिल्कुल। to that childhood conditioning, so many people struggle in their personal and professional life. So can you just बहुत tell me ज्यादा। more about it, like through examples, how exactly childhood conditioning impact our personal and professional life? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो है कंडीशनिंग, मतलब हमको कैसे बड़ा किया गया है, क्या बोल करके बड़ा किया गया है। अगर किसी बच्चे को बोला गया है तुम ये नहीं कर सकते, या तुमसे ये नहीं बन पाएगा। अगर कोई बच्चा अपने बच्चा मतलब मम्मी पापा कोई अपने बच्चे को बार बार लगातार ये बात बोलता रहे कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये कभी नहीं कर सकते, वो बच्चा बड़ा होकर भी हमेशा वो जो लो सेल्फ एस्टीम अपने साथ हमेशा कैरी करेगा, उसके वाइफ के सामने भी, अपने बॉस के सामने भी, अपने बच्चों के सामने भी। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, वो रिकॉर्डिंग की तरह, ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह वो दिमाग में चलता जाता है। दिस इज कंडीशनिंग। अगर अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप परफेक्ट नहीं हो, परफेक्ट बोल के कोई चीज होती ही नहीं है, परफेक्शनिज्म होती ही नहीं है, मतलब ये साइंस हैज प्रूवन इट। आप Hmm. जिस कंडीशन में है, जैसे हैं, दैट इज बेस्ट। यू जस्ट स्टार्ट, करते करते वो पॉलिश होती रहेगी। बट जैसे ही किसी ने आपको वो बचपन से दिखाना शुरू किया ना, नहीं ये परफेक्ट नहीं है, और अच्छे से करो, और अच्छे से करो, और अच्छे से करो, तो बच्चा कभी कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाएगा कि कौन से स्टेज में जाके वो कॉन्फिडेंटली बोले यस आई एम दी बेस्ट, वो कभी नहीं बोल पाएगा। सो दीज लिटिल लिटिल सेल्फ डायलॉग, आउटर डायलॉग, बट यहाँ पे जो मैं आपको पहले भी बता रही थी ना, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जो हेडस्ट्रांग होते हैं, चाहे दुनिया बोले कुछ भी, भाड़ में जाए, मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिमाग बोल रहा है। Hmm. और दूसरे किस्म के बच्चे होते हैं जो बहुत ही वीक, वीक नहीं बोलूंगी, दिमाग से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने
अपने मम्मी पापा पे, भाई बहनों पे। अब अगर उनको उनके मम्मी पापा और भाई बहनों ने बहुत ही ज्यादा दबा दिया या बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स फीड करते रहे उनको बचपन से, फिर ना वो कभी ग्रो कर नहीं पाते, क्योंकि उनमें वो हिम्मत नहीं होती कि उनके चेन्स ब्रेक करके वो अपना कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़े। तो एक सेट ऑफ बच्चा है हु इज सेल्फ obsessed, he knows what I'm thinking, I'm doing it. The other set of बच्चा who will always have 10 times he'll doubt कि मुझे मना किया यार, मैं फिर भी कर लूं, कहीं कुछ हो गया तो, है ना। तो ये जो दो तरह के हम लोग की थॉट प्रोसेस है, हम सभी में होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, है ना। तो तो क्या होता है, वो एक्चुअली कर नहीं पाते हैं लास्ट तक। सो दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम कंडीशनिंग, दिस इज फैमिली कंडीशनिंग। बचपन से अगर भाई बहनों में, जैसे बहुत पुराने जमाने में, आजकल तो होता नहीं है, भाइयों को हमेशा ज्यादा माना जाता था, लड़कियों को बहुत ज्यादा नहीं माना जाता। तो कई बार क्या होता है, लड़कियों के खाने में भी ध्यान नहीं है, लड़कियां अगर बीमार है तो भी ध्यान नहीं है, बट भाइयों पे हर वो मतलब प्यार जताया जा रहा है, हर चीजें कुर्बान है हम भाइयों पे। तो ये चीज तो बेटियां फील भी करती थी, कुछ बोलती भी नहीं थी, बट वो क्या होता है, बचपन से वो देखते 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 जब एक स्टेज अडल्टहुड में पहुंचते हैं, और हम सडनली हमको लगता है अरे यार ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। नहीं, हमें बचपन से ऐसे देखते आए तो हम अपने आप को खुद ही कम करने लगते हैं, हमारे अंदर से ना, हम कैसा फील कर रहे हैं, सामने वाला मुझे देख के क्या फील कर रहा है, वो मेरे अंदर की फीलिंग ही आप तक पहुंच रही है। अगर मैं दब्बू दिख रही हूँ आपको, मतलब मैं अंदर से दब्बू हूं, मतलब मैं हम्म। अंदर से, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शेक किया है किसी ने, इसीलिए मैं दिख रही हूं ऐसे। अगर मैं कॉन्फिडेंट दिख रही हूँ तो मैंने अपना सेल्फ टॉक हाई रखा है, इसीलिए मैं आज कॉन्फिडेंट हूँ। तो वो चीजें ना, हम जो अंदर फील करते हैं ना मोहित, बिल्कुल सही बात है, वो हमेशा आपके सामने वाले तक ना, बिकॉज वी आर ऑल मिरर इमेजेस, हम या सब आईने की तरह हैं। बिल्कुल। आप मेरी अच्छाई देख रहे हैं तो आप में भी वो अच्छाई है, आप मेरे में बुराई देख रहे हैं तो वो बुराई भी कहीं ना कहीं आप में है। सो बिल्कुल। मिरर इमेज ही देखते हैं एक दूसरे की, तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसमें। And due to this childhood conditioning, so many professionals, they have a lot of talent, but still they get stuck. Like where they are, they would be at the same position or something. you know बट उनको नहीं समझ में आता है कि ये हमारे साथ हो क्यों रहा है। तो उस पैटर्न को, उस सिग्नल को कैसे समझे कि ये हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से हम अपने कैरियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या आगे फिर नहीं कर पढ़ रिलेशनशिप पा में रहे। हमको किसी के साथ तो हमको डाउनग्रेड किया जा रहा है और हमको रियलाइज ही नहीं हो रहा है। ठीक है। ये हर जगह ही होता है, मतलब प्रोफेशन हो, पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, इट इज एवरीवेयर, इजंट इट। तो इस एब्सोल्युटली पैटर्न को एब्सोल्युटली। हम एक तो कैसे पहचाने, क्योंकि ज्यादातर लोग तो जीते जा रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल, वो सिग्नल ही नहीं समझ हम्म। पाते। सो सिग्नल बिल्कुल कैसे समझें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिग्नल समझ में आएंगे तभी तो इंसान प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सोचेगा। बिल्कुल। ये ना बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आप ना, पहली बात तो आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बात है, कि हम इतना जीने में लगे हुए होते हैं ना, एकदम जी जान लगा के, हम रोज दौड़ रहे हैं ऑफिस, रोज वापस आके खाना खाना है, सो जाना है, या अपना वर्कआउट करना है, ये करना है, वो करना है, हम इतने करने में लगे हुए हैं कि हम ना वो गैप, वो वैक्यूम या वो टाइम नहीं लेते हैं खुद को समझने में। और खुद को समझना इतना ज्यादा जरूरी है। हम सब के सब लगे हुए हैं दूसरों को चेंज करने में, अपने पति को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को, बट अपने बॉस को। हम्म। लेकिन ना सिर्फ एक ही चीज को हमको संभालना है, और चेंज भी कर सकते हैं, वो है खुद को। आप सिर्फ बिल्कुल। और सिर्फ, हर इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद पे काम कर सकता है और खुद को ही चेंज कर सकता है। सो अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है, पैटर्न कैसे समझे, आपने पूछा। पैटर्न ऐसे समझे जब आप एक लूप में अटके हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जॉब ज्वाइन की, वहां पे आपके बॉस के साथ कोई मुठभेड़ हो गई, या किसी बात पे आप अड़ गए, या इसीलिए आपने अपने ईगो के चलते या जो भी है आपने जॉब छोड़ दिया, एंड देन अगेन यू जॉइंट अनदर जॉब, and you found a similar problem, a similar kind of problem with a colleague, maybe this time not a boss, maybe a colleague, and again you
ड्रिफ्टेड अपार्ट, अगेन आपने दूसरा जॉब। दिस इज अ पैटर्न, आपको खुद का पैटर्न खुद ही समझना है। ये इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, इसके लिए कोई मतलब अगर लाइफ कोई चीज बार आपको बार हेल्प हो नहीं रही है कर तो। सकता। जी, जो चीज बार बार रिपीटेटिवली आपके साथ हो रही है और अननोइंगली या नोइंगली आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आप वो डॉट्स को आप ज्वाइन करते हुए जाएंगे ना, आप देखेंगे अरे ये बार बार मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान जी आपकी लाइफ में बार बार वो चीजें ही लेके आएंगे जिससे आपको सीखना है। और अगर कोई पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है, और वो नॉट सो हैप्पी पैटर्न, इट्स अ बैड टाइप ऑफ पैटर्न विच इज अफेक्टिंग यू, मेकिंग यू सैड, मेकिंग यू फील गिल्टी, दैट मीन्स भगवान जी आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कोई लेसन आपको सिखाना चाहते हैं जो आपने नहीं सीखा है। तो आपको थोड़ा माइंडफुल हो जाना है कि भाई ये बार बार मेरे साथ, ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी ही वजह से हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैंने ही कोई गलती कर दी है या मैं ही हर बार गलत हो रहा हूं कहीं पे। तो वो अवेयरनेस जो है, खुद की अवेयरनेस और माइंडफुलनेस आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे साथ तो कभी मुझे कभी इसके पहले कभी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कभी लेओवर हुआ नहीं था किसी कंपनी में, और मुझे कभी किसी कंपनी से लेओवर हुआ भी नहीं था, तो मुझे कभी पता ही नहीं था ये पैटर्न कैसा होता है। मैंने सुना बहुत था क्योंकि कई सालों से ऐसा पैटर्न हो रहा है बिकॉज ऑफ द मार्केट या इकोनॉमिक कंडीशन। लेकिन जब मेरे साथ हुआ एंड आई न्यू सिंस मॉर्निंग, जब हम ऑफिस में घुसे थे, कि आज बहुत सारे लोगों की ना ऐसे लगने वाली है, आई वाज प्रीटी सिंपल, अरे दूसरों की लगेगी, ऐसा होता है ना कि सब मरने वाले हैं पता है, लेकिन मैं मरने वाली हूँ अभी मुझे नहीं पता था। वैसी हालत थी। सो मुझे पता था सब, मतलब कई लोगों की जाने वाली, मुझे नहीं पता था, आउट ऑफ सरप्राइज इट वाज आल्सो मी। सो जब वो आया ना, तो इट वाज अ झटका फॉर मी। सिमिलरली, जब हम पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि कहीं आप गिल्टी हैं, कहीं आप कहीं पे आप कहीं गलत कर रहे हैं किसी तरह से, या तो आपके बोलने में या तो आपके सेल्फ टॉक में। कई बार ये भी होता है कि हम खुद के लिए इतना नेगेटिव बोल देते हैं ना, प्रोक्रास्टिनेट इतना करते हैं कि वो हमारी लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी बन जाती है। हम कई बार खुद ही को मजाक में हंसते हंसते बोलते हैं, अरे मेरा तो यही खराब है, नहीं नहीं मेरा तो बहुत अच्छा है, मतलब मैं बोल रही हूँ, कई बार बोलते हैं ना लोग, मेरा तो भाग्य ही खराब है। अरे ऐसा नहीं बोलते हैं हम ना। आजकल तो इंग्लिश में बोलने लगे हैं वर्ड्स आर विजडम और पावर ऑफ वर्ड्स, बट ये हमारे संस्कृत में है वाक सिद्धि। कि आप वाक्य सिद्धि हो जाए, मतलब जो वाक्य बोले, बोलते हैं ना पूरे दिन में हमारे जवान में माँ सरस्वती विराजमान होती है 3 बार, तो आप जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो इसको वाक सिद्धि बोला जाता है संस्कृत में। तो वाक सिद्धि इज पावर ऑफ वर्ड्स। आप जो बोल रहे हैं वही आपके साथ रिपीट होने वाला है। तो आप सोच करके बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, वैसी बातें कीजिए। जो आप नहीं चाहते उनके बारे में मत बोलिए, क्योंकि आप जिन चीजों को नहीं चाहेंगे, यूनिवर्स नहीं समझता है, क्रिएटर नहीं समझता है कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, बट आप जो बार बार बोल रहे हैं भगवान के लिए वही आप चाहते हैं। तो अगर आप बार बार दुख की बात बोल रहे हैं तो भगवान जी और दुख देते जाएंगे, क्योंकि आप तो वही बातें गुनगुना रहे हैं बार बार। तो वो ऊपर से तथास्तु तथास्तु बोलते जाते हैं, 2400 घंटे तथास्तु चल रहा है यूनिवर्स का। तो अगर आप क्या बोल रहे हैं उस पे काबू नहीं है, तो वो कंटिन्यूटी में वो आप ही को उस दलदल में फंस फंस रहे हैं। आप आपको अननोइंगली पता भी नहीं चलता है। तो एक बार आपको अपना पैटर्न समझ आ जाए, फिर आप अपने क्वेश्चंस लिखना शुरू कीजिए। क्यों ऐसा क्यों है, मैं इतना रूडली क्यों बिहेव कर रहा हूं, क्या मेरे में कहीं इनसिक्योरिटी है, क्या मुझे झूठ बोलने से आपत्ति है, या मुझे लोगों से क्वेश्चन आने, मतलब लोग अगर मुझे क्वेश्चन करें तब मुझे आपत्ति है उनको आंसर देने में। वेयर इज इट दैट आई एम फाइंडिंग अ फॉल्ट। क्योंकि जैसे मैंने बोला, कई बार हम खुद ही अपनी जो नाकामियां हैं या खुद के जो फेलियर्स है ना, उनको हम निग्लेक्ट करते हैं। जैसे मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं दे रही हूँ। मैं जब मेरे हस्बैंड खुद बोलते थे कि ना मेरा ये वेबसाइट जो है कई सालों से है, कई सालों से मैं फ्रीलांसिंग करती थी, बट वो एक होता है ना साइड हसल था वो मेरा, वो कभी फुल टाइम नहीं था। और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे यू हैव इनफ नॉलेज, यू स्टार्ट योर ओन। बट मुझे ना कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं मिला कि नहीं नहीं मुझे तो भी बहुत कुछ सीखना है। तो बहुत कुछ सीखने का जो स्टेज है ना, वो इतना चला कि 22 साल तो मैं सीखती रह गई।
और जब वो दम से मेरा जॉब चला गया, तब मुझे सडनली लगा मुझे कुछ नहीं करना है। एक्चुअली इट वाज आई वाज कंप्लीटली इन डिनायल। मुझे लगा कि अब तो मैं तो जॉब नहीं ढूंढने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भगवान की दया से कभी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, हमेशा जॉब आ जाते थे, करते करते एक और जॉब की ऑफर आ ही जाती थी। अब इस बार क्योंकि मुझे ढूंढना था, मैंने सोचा मैं नहीं करूंगी जॉब। 15 दिन बैठी, घूमी फिरी, पर दिन काम करता हुआ इंसान के कितने दिन चुपचाप बैठेगा। सो वो ऑटोमेटिकली आपको फिर एकदम से लगता है कर क्या रही हूं मैं, है ना। सो वंस यू गेट टू नो योर पैटर्न, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। या आप किसी से बात कीजिए, ऐसे किसी से जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, आपके पति, कि क्या ये जो मैं पैटर्न देख रही हूँ, क्या यहाँ पे मेरी गलती हो सकती है, क्या ये बिहेवियर मेरी गलती में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरों से भी बात करने से ज्यादा हम सबसे ज्यादा खुद से बात करते हैं पूरे दिन में। अभी जो मैं बोल रही थी वाक सिद्धि, आप क्या बात करते हैं खुद से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो एनर्जी एमिट करेंगे, वही एनर्जी आपके पास वापस आएगी। तो आप अपने क्वेश्चंस और खुद से बात बहुत ज्यादा कीजिए, बहुत पॉजिटिवली। क्योंकि अगर आप खुद से बात नहीं करेंगे, अकेले रहना ना पसंद करेंगे, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये मैंने बहुत टफ वे में सीखा है कि जब आप खुद अपने ग्राउंड लेवल पे आके खुद के साथ अकेले बैठना कंफर्टेबल कर लेंगे ना, उसके बाद आपको कोई हिला नहीं पाएगा। Yeah, ठीक। yeah. एंड अगर काफी सारे लोग जो इस प्रॉब्लम से जीते रहते हैं, वो हम्म। अपने आप को हील नहीं कर रहे, दे आर नॉट taking the path of healing, so how it will impact their life? See, it will not impact their lives. They will come across similar experiences time and again. Hmm. देखिए, जिनको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद की बात बता रही हूँ। अगर मुझे नहीं पता, मुझे तो ये अवेयरनेस ही नहीं है, मुझे खुद अवेयरनेस नहीं थी ये 2022 के पहले, कि भाई ऐसा भी कुछ होता है हीलिंग, ऐसा भी कुछ होता है कि कंडीशनिंग बिलीफ सिस्टम, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे अपने में ये सारी चीजें ठीक करनी है। तो पहली बात तो है अवेयरनेस लाना। तो जब आप खुद को बड़े माइन्यूट तरीके से ऑब्जर्व करने लगेंगे, अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व करने लगेंगे कि बार बार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो पहला आपका जो अवेयरनेस है वो आपके साथ आ गया। अब अवेयरनेस को तोड़ना भी तो जरूरी है, अवेयरनेस तो आ गया, लेकिन ये पैटर्न को तोड़ना भी तो जरूरी है। सो पैटर्न तोड़ने के लिए कुछ प्रेयर्स हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ माइंडफुलनेस एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं। आप अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ, गुस्से से लोग बहुत गलत डिसीजंस लेते हैं, गुस्से को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद का अवेयरनेस ला करके आप लंबी सांसें ले सकते हैं, जिससे कि आपका ब्रेथ जो है, आपका हार्ट बीट नॉर्मलाइज कर देगा, पल्स रेट नॉर्मलाइज कर देगा। तो ये अवेयरनेस आप ले आए। उसके बाद खुद को पूछिए कि मैं क्यों गुस्सा हो जाता हूँ हर छोटी छोटी बात पे। हर छोटी चीजें मुझे क्यों गुस्सा करते हैं, या तो मैंने देखा है बचपन से कि मेरे पापा बहुत गुस्सा करते थे, या मेरे टीचर्स बहुत गुस्सा करते थे, या मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, इसलिए मुझे पता है कि अडल्टहुड का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्जन इज गुस्सा करना। यू नो वो मेरे दिमाग में घुसा हुआ है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। या तो मैं बहुत जल्दी इंसिक्योर हो जाती हूँ किसी के क्वेश्चन करने से, इसीलिए मैं गुस्से में आ जाती हूँ। किसी ने मुझे पूछा आपकी डिग्रीज क्या है, तो मैं एकदम से तिलमिला गई, अरे मेरी डिग्रीज पूछ रहे, इतने डिग्रीज हैं। अरे तो क्या हुआ, उसको नहीं पता ना, इसीलिए पूछ रहा है। थोड़े माइंडफुल हो जाएं, थोड़े ग्राउंडेड हो जाएं। एक्चुअली हमेशा हर क्वेश्चन हमें तीर जैसे आके बीतते अपने लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं। हम खुद इतने ऐसे रहते हैं ना, अपने आप को वहां मान के चलते हैं कि हम ग्राउंडेड ही नहीं रहते, हमको पता है कि यार मैं तो कुछ हूं। ऐसा नहीं है, हम सभी कुछ ना कुछ हैं, सबके कुछ ना कुछ गुण है, सबके कुछ ना कुछ खामियां भी हैं, बट वही लेकर के एक इंसान है, एंड एवरीबडी इज यूनिक इन देयर ओन वे। बट खुद को समझ के चलना और खुद को जान लेना सबसे बड़ी मतलब सक्सेस है इस लाइफ की। Yeah. ह्यूमन लाइफ की इसीलिए सक्सेस कि ह्यूमंस में ही वो बुद्धि होती है समझने की, बूझने की, परखने की। एनिमल्स में तो नहीं है। एनिमल तो एनिमल इंस्टिंक्ट से जीता है। हम लोगों में तो बुद्धि है ना, कि इतने सालों के एक्सपीरियंस को हम काउंट करते हैं, अपने मम्मी पापा के एक्सपीरियंसेस को काउंट करते हैं, बुक्स पढ़ के हम एक्सपीरियंसेस गैदर करते हैं।
So why not pick them up but talk to yourself more? आप अपने से बात, अच्छी बातें ज्यादा कीजिए, प्रश्न कीजिए कि मेरे साथ क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ, मेरे हाथ में है इसको ठीक करना है। मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑफ कोर्स, अगर आपको कोई गाइड मिल जाए, लाइफ कोच मिल जाए या आपके कोई फ्रेंड मिल जाए जो ऑलरेडी आपको हेल्प कर सकता है, बात करने को तैयार है, बहुत अच्छी बात है, आप उन्हीं के साथ बैठ जाइए। अगर कोई नहीं है, फिर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड व्हाट इज द, लेट सपोज इफ सम, अभी हम जैसे आइडेंटिफिकेशन की बात की कि ये सिग्नल्स हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है, या फिर एक्स हम्म। वाई जी रिलेशनशिप में बार बार झगड़े शुरू हो रहे हैं, या पैसे हम एग्जैक्ट। कमा रहे, पैसा रुक नहीं रहा है, यू नो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये सारे वो पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि शायद शायद इट माइट बी हैपनिंग, हमारे चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से हो रहा या हो, मेरे ये खुद हो के सकता है। बिहेवियर की वजह से, जो हाँ, बिहेवियर बिहेवियर है की वजह वो चाइल्डहुड कंडीशनिंग का एक पार्ट है। से जी, कि वो हमारी ओल्ड आइडेंटिटी बनी हुई है। नाउ हम्म। इफ somebody want to start their healing journey, you know what should be their step by step process, and if you could share one or two or three practical steps जो immediately implement करें and they get the sense of relief। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत डीप प्रश्न पूछा आपने मोहित। जी। सबसे पहला आपका जो पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि आइडेंटिफाई तो कर लें, लेकिन इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करें, Yeah। है ना? तो इसके बहुत सारे और भी वो है, मतलब और पॉइंटर्स हैं, वो मैं बताती हूँ आपको बाद में। पैटर्न ब्रेक करने का पहले मैं बता देती हूँ, बिकॉज मैंने खुद, ये मैंने अपने मेंटर से सीखा है, एंड शी वॉज वन ऑफ माई स्कूल सीनियर्स। एंड प्रिया से जब मैंने ये सीखा था, उन्होंने मेरा फेसबुक पोस्ट देख करके मुझे मैसेज किया था कि अनन्या, यू डोंट सीम टू बी हैप्पी, मैसेज मी। मतलब उनका आप वो सोचिए, हालांकि इतने साल हम कनेक्ट में नहीं है, 20 साल हो गए, फिर भी अगर उन्होंने कुछ फील किया, मतलब वो कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल इंक्लाइंड थी कि उन्होंने कुछ फील किया होगा। सो जब मैंने उनको ज्वाइन किया, उनसे मैंने सीखा है फर्स्ट टाइम हो पोनो पोनो प्रेयर। इट्स अ हवाइन प्रेयर, और उसके सिर्फ 4 पंक्तियां हैं। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और ये चारों पंक्तियां हमें किसी को नहीं बोलनी है, खुद को बोलनी है। हम क्यों खुद को बोल रहे हैं? हम सब क्रिएटर के पार्ट हैं। क्रिएटर मतलब भगवान जी, आप जिस भगवान जी का नाम ले लें, क्रिएटर, यूनिवर्स, वो सब एक ही है। अब हम सभी उन्हीं के अंश हैं, ठीक है? तो हमको अपने उस टुकड़े को आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू बोलते जाना है कंटिन्यूअसली। 108 बार अगर डेली कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए, मैं तो बोलती हूँ ऑटो पायलट मोड पे जो काम कर रहे हो, जैसे आप ड्राइव, मैं जब ड्राइव करती हूँ, नहाती हूँ, मैं ऑटोमेटिक वो मेरे चलता रहता है, लाइक अ टेप रिकॉर्डर। तो आप बोलते रहिए खुद को। देखिए इसका 2 फायदा है, बिकॉज इज अ हवाइन प्रेयर। ये वो प्रेयर है, इनके जो ऑथर हैं जिन्होंने इसको किया है, ह्यू लेन, ही इज फ्रॉम दैट आइलैंड ओनली, एंड उन्होंने ये 4 पंक्तियों का इस्तेमाल करके एक वार्ड ऑफ साइकियाट्रिक पेशेंट्स को ठीक कर दिया। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये बोला जाता है, चाहे आपकी कोई चीज चोरी हो गई हो, चाहे आपके आपके ससुराल में डिस्कम्फर्ट हो, चाहे आपके अपने साथ डिस्कम्फर्ट हो या किसी और के साथ डिस्कम्फर्ट हो, आप हर वो चीज को कंफर्टेबल कर देंगे जो आपको उस कंडीशन में लेके आ रही है बार बार। वो बार बार आपको वापस ला रही है उस कंडीशन में, आपको कुछ सिखाने के लिए। सो वेन यू से दिस Ho'oponopono prayer over and over and over again, something in you will change. Something in you will realize that मैं शायद कुछ ठीक नहीं कर रही हूँ, या मुझे यहाँ पे ये सुधारना है। तो वो अपने आप चीजें जो है ना रियलाइंड हो जाएंगी। आपके फैमिली के साथ हो, आपके खुद के साथ हो, आपके प्यार करने वालों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप उनके लिए भी कर सकते हैं। जैसे मेरे फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, मैं डेली उनके लिए होपोनोपोनो कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट हिम टू बी हेल्दी टिल द लास्ट डे। We all have to live, we all know that. But the last day, he should be happily with all of us, surrounded by us. तो आप
जिसको भी बहुत प्यार करते हैं, आप खुद को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप खुद के लिए ये फर्स्ट स्टेप ले लीजिए। उसके बाद आप अपना गाइड ढूंढिए। गाइड कैसे ढूंढे, या ये स्टेप हम, आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि हम इसको कैसे आगे बढ़े। जब हमको हम्म। पता चल गया हो इसको हम आगे कैसे, देखिए बहुत सारे, आपको तो इंस्टाग्राम में भी बहुत लोग हैं, आप लिंक्डइन में ढूंढेंगे तो भी बहुत लोग मिल जाएंगे जो ऑलरेडी लाइफ कोचेस हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारे मोडालिटीज को लेके काम कर रहे हैं। अब हर किसी के साथ ना हम सबका कनेक्ट बैठता नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन बोलते हैं ना। तो आप सुनिए, आप लोगों को सुनिए, लोगों की बातें सुनिए, उनके रील्स देखिए, आपका जिसकी बात सुन करके आपको लगे अरे वाह, इनके साथ मेरी कनेक्ट बैठ गई है, एंड आई थिंक आई कैन गेट हेल्प फ्रॉम दिस पर्सन, आप उनको अप्रोच कीजिए, डीएम कीजिए और पूछिए मुझे आपके साथ ऐसा कोई कोर्स है जहां आप मुझे हेल्प कर पाएंगी, मैं इस एरिया में स्ट्रगल कर रहा हूँ। So definitely, I'm sure they are going to help you and walk you through the process. ठीक है। सो फर्स्ट, आप पैटर्न ब्रेक करने के लिए होपोनोपोनो स्टार्ट करें। सेकंड, आप अपना वो गाइड ढूंढे जिनके साथ आपका वो कनेक्ट बैठ रहा हो, या आप अंदर से वो फील कर रहे हो कि इस इंसान के साथ आई थिंक आई विल फील वेरी वेरी हर्ड, वेरी सेफ, वेरी लव्ड। क्योंकि हर बच्चा इस दुनिया में आता है प्यार फील करने के लिए और सेफ फील करने के लिए। ये दो चीज हम बड़े होने तक हमें यही चाहिए होता है मोहित। हम्म। बचपन में वो बच्चा जब आता है मम्मी पापा के पास, यही चाह कर आता है कि मुझे बहुत सारा प्यार मिले और बहुत सारा सेफ्टी मिले अपने घर से। और जब हम अडल्ट हो जाते हैं ना, तभी भी हम यही चाहते हैं, प्यार और सेफ्टी, और कुछ नहीं। अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से, हर किसी से, राइट। And you also talk about this nervous system healing. ओ यस, सो So, मच। so many people don't know much about it. So, can you just explain it with detail? Like what श्योर। exactly it is and how does it work? सो नर्वस सिस्टम बेसिकली इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा जो स्कल है, हमारा ब्रेन तो स्कल के अंदर है, राइट। और उसके जो नीचे का जो हमारा टनल है, वहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड सीधा कनेक्ट करता है टिल द एंड, टेल बोन Hmm. पे जाके वो एंड होता है। Yeah. वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इट्स मोर लाइक अ, क्या बोलते हैं हम घर में जो वो जहाँ पे वो गिर जाता है, व्हाट डू वी कॉल इट, जहाँ पे हमारा मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है ना, जहाँ कुछ कोई फ्यूज हो जाता है तो हम ऐसे उठा नहीं देते, क्या बोलते हैं हम उसको, यूएसबी नहीं। MCB, MC हाँ, बोल। एमसीबी, राइट राइट। Hmm. एमसीबी बॉक्स होता है ना, वही Hmm. हमारा नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी का, Hmm. राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल पार्ट। और वो ऐसा पार्ट है कि अगर आपके कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, वो आपको दिखने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सडनली किसी को फूट फूट के रोने का मन कर रहा है, ऐसे ही तो किसी को मन नहीं करेगा ना रोने का, उसको अंदर कहीं कुछ दर्द हुआ है, कहीं कुछ टूटा है, इसीलिए उसको रोने का मन कर रहा है। बच्चों को आजकल तो मैं थोड़ी सी डर भी जाती हूँ। मेरा बेटा अभी तो क्लास 9th में है, जब वो 7th में था, आई रिमेम्बर, उसके क्लास में कोई और बच्ची थी। मैंने सुना था बाकी बच्चों से और मेरे बेटे से कि उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, क्लास 7th में पैनिक अटैक्स, एंड आई वाज एस्टाउंडेड। बच्चे को पैनिक अटैक, और उसको पता भी है कि उस बच्चे को पैनिक अटैक आता है। तो मतलब कितना ज्यादा वो बच्चा पैनिक में रहता होगा। सो पैनिक अटैक आना, सडनली डर जाना, सिसकियां ले लेके रोना, या एकदम चुप हो जाना, शट डाउन जिसे हम बोलते हैं, या कोई चीजों को अवॉइड करना। आप देखिएगा कई लोग ना चीजों को सॉल्व नहीं करना चाहते, वो अवॉइड करते हैं। ऑल दीज आर आवर body's way to regulate our nervous system. Now, what is nervous system is, nervous system wants to make us feel safe. हमारे दो पार्ट्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितने हमारे उसके वो निकलते हैं ना, जितने वो ब्रांचेस ऑफ नर्व्स, वो हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, वो ब्रेन टू गट, गट यानी हमारा जो डाइजेस्टिव लाइनिंग है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक, उसको कनेक्ट करता है।
सो अगर आप देखें कि जब आप अपसेट होते हैं या दुखी हो जाते हैं, आपको भूख भी नहीं लगती है। दो कंडीशन होते हैं, या तो आपको बिल्कुल भूख नहीं लग रही है या बहुत ज्यादा एक्सेसिव भूख लग रही है। इट इज अ ऑटोनॉमिक सिस्टम डिसऑर्डर। आप रेस्ट में हैं या आप फाइट एंड फ्लाइट स्टेट में हैं, वो एएनएस डिसाइड करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ये क्या होता है बेसिकली, हम किस स्टेज में हम काम हैं, एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा हम अवॉइड कर रहे हैं चीजों को, ये सब डिसाइड करता है हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड जब भी कुछ गलत होने वाला होता है, मे बी मुझे कोई चांटा मार रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं आंखें घुमा लूंगी, हाथ घुमा लूंगी। दिस इज माई नेचुरल वे ऑफ माई बॉडी टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। हमारी बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी वही काम है, हमें सेफ रखना, प्रोटेक्टेड रखना। तो जहां पे सोचो, एक बच्चे ने बचपन से उसने सिर्फ घर में मारधाड़ गाली गलौज ही देखी है, तो उस बच्चे का ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कि ये नॉर्मल है। लाइक उसने बचपन से देखा है, लाइक हर दिन यही देखा है, माँ बाप गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एंड फॉर देम दिस इज नॉर्मल। सो अगर बच्चा बड़ा होकर ऐसे किसी घर में जाता है जहां सब लोग शांत हैं, उनको मजा नहीं आएगा। उनको लगेगा ये स्ट्रेसफुल है, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल से इस गाली गलौज एंड झगड़ा। तो जब तक घर में क्लेश नहीं फैलाएंगे तब तक उनको सेफ नहीं फील होगा। सो जो ऐसे एनवायरनमेंट से आए हैं, उनको शांति वाले एनवायरनमेंट में उनका नर्वस सिस्टम बड़ा जिटरी हो जाएगा। दे कैन नॉट स्टे शांत वहां पे, दे हैव टू क्रिएट अ प्रॉब्लम टू मेक इट फील सेफ फॉर देयर बॉडी, बिकॉज दैट इज हाउ दे नो दिस इज सेफ्टी। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक बच्चा जो हमेशा शांति वाले घर में ही पला बड़ा है, वो अगर ऐसे एनवायरनमेंट या ससुराल में आ जाए जहाँ हमेशा क्लेश लगे हुए हैं, तो उसका नर्वस सिस्टम रोएगा। उसको सेफ फील कराने के लिए वो भागेगा वहां से। या तो वो अपने आप को बाथरूम में जाके बंद कर लेगा, या अपने रूम का दरवाजा बंद कर, ही वांट्स शांति। उसके लिए सेफ्टी यानी शांति में रहना। सो आप समझ रहे हैं बात को? दो डिफरेंट हम्म। पिक्चर मैंने एग्जांपल दिए ये बताने के लिए कि नर्वस सिस्टम सेफ्टी या नर्वस सिस्टम रेगुलेशन इज नथिंग बट मेकिंग माई सेल्फ फील सेफ एंड हर्ड। जो जैसे एनवायरनमेंट से आया है, वो उसी एनवायरनमेंट में बड़े होने तक नहीं, बूढ़े होने तक वो उसी को अपना मैंडेट मान मान के चलेगा। अब चाहे वो क्लेश वाला हो, चाहे वो शांति वाला हो, वो हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो बहुत बहुत एज में पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको अगर सब कुछ शांत है ना, उनको मजा नहीं आता है। उनको कुछ ना कुछ क्लेश करना है, तभी उनको मजा आता है। हम्म। क्यों? क्योंकि दे हैव ग्रोन अप लाइक दैट। और वो हमेशा क्लेश वाले एनवायरनमेंट में ही पले बड़े हैं ना। तो ये उनकी गलती भी नहीं है, मतलब ये किसी की गलती नहीं है। This is how a person has built their body and mind, has built their system like that. समझा पाई मैं आपको? Yeah, bilkul. And when it comes to healing, there are a lot of misconceptions, which people thinks are true, but these are not true. They all are misconceptions. So, can you tell me more about it कि जब भी healing की बात करते हैं तो लोग जिनको सच समझते हैं, वो सच नहीं है. Reality is something else. And what exactly it is. हाँ, मतलब स्पेशली मैं बोलूंगी जो लोग ना बहुत, मतलब मुझे नहीं पता क्या सही या क्या गलत है, बट कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं तो डाइट और लाइफ कोच दोनों के एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ। अगर किसी ने बहुत बेनिफिट किया है कुछ चीज करके, या बॉडी का वेट लूज किया है उन्होंने किसी मेंटोर के हेल्प से, और फिर वो हेल्प जब वो उन्होंने लूज कर लिया, वो आइडियल बॉडी वेट पे आ गए, फिर वो अपने अपने रेसिपीज बना के बोल रहे हैं कि भाई ये खाओ, इससे वेट लूज होगा। अब वो तो है नहीं डाइटिशियन, लेकिन उन्होंने अपना वर्जन डाल दिया कि भाई ये खाओ तब मेरे जैसे वेट बनेगा। दिस इज, अब देखिए, वो गलत तो है नहीं, हो सकता है वो अभी भी वो जर्नी कंटिन्यू करने अपनी तरीके से। मैं उन लोगों को दोषी बोलूंगी जो बिना बैकड्रॉप चेक करके, बैकग्राउंड चेक करके उनके साथ जुड़ जाते हैं।
जुड़ने के बाद वापस आते हैं, मेरे पास आते हैं, कई लोग आते हैं वापस कि भाई मैं एक डाइटिशियन के साथ थी, बाद में पता चला वो डाइटिशियन ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने उनके सर्टिफिकेशंस या कुछ चेक नहीं किया? पूछा नहीं। नहीं कैसे पूछती मैम? मैंने कहा क्यों, आप मुझे भी पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगी मैं एमएससी की हुई हूँ, वरना मैं क्यों बोलूंगी? अगर मैं डिप्लोमा होल्डर हूं तो भी मैं बोलूंगी। लेकिन ये तो आप लोग का हक है ना एज कंज्यूमर्स पता करना कि आप वेल रेड वेल सर्टिफाइड है कि नहीं। तो ये तो पहली बात तो, जो एज कंज्यूमर एज कस्टमर्स अगर आप किसी के पास अप्रोच कर रहे हैं, आपकी फुल अथॉरिटी है कि भाई आप उनको ओपनली पूछें। अगर उससे उनकी ईगो हर्ट हो जाती है वो तो भगवान जाने, बट आपके पास हमेशा वो हक है जानने का कि आपने वाकई में आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं या आपने अपने एक्सपीरियंस है। तो कई लोग आजकल अपने एक्सपीरियंस भी आउट एंड आउट बताते हैं कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है इसीलिए मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूं। तो उनके पास आप जाएंगे कि नहीं, दैट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन। हम्म। लेकिन अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हैं, मैं हमेशा बोलूंगी आप चेक कीजिए इफ दे आर वेल सर्टिफाइड और नॉट। बिकॉज इफ दे आर नॉट सर्टिफाइड और उनको लगता है मुझे हेल्प मिल गई है मतलब अब मैं सबको हेल्प कर सकती हूँ, हो सकता है वो आपको हेल्प कर भी पाए कुछ हद तक। उसके बाद क्या? उसके बाद आपको कौन कंटिन्यू कराएगा प्रोसेस? वहां जाके वहां से तो आप फिर आधे रास्ते पहुंचेंगे, फिर आपको कौन वापस ले आएगा? हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिसके पास भी जाएं पता करके जाएं, और आप वापस उनसे तभी, आपका जब आपका गोल कंप्लीट हो जाए तभी आप पुट डाउन करें। बिल्कुल। बिकॉज ये दोनों के लिए बहुत म्यूचुअल है। जो मेरे हम्म। पास भी आते हैं, इट हैज टू बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। हम्म। उसके बिना तो कोई भी काम आप नहीं सक्सेसफुली कर सकते हैं ना। हम्म। Yeah, Ananya, this conversation has been too long so far. I have last two questions. First ओके। thing is, has someone told you you look like Anushka Sharma? नो No? नेवर। Is this your first time? But एब्सोल्युटली। this is what I was thinking. Like, okay, you are looking like a bit of Anushka Sharma. थोड़ा अनुष्का सा वो शर्मा। चेहरे, yeah, ओके। Virat Kohli, Anushka Sharma, that one. थोड़ा सा वो ठीक। चेहरे पे देख रहा है. And second question is this, like if someone wanna start their healing journey, absolutely you can help them, right? So how exactly they can contact you? Okay, they can always DM me, they can mail me, or they can get in touch with me on my WhatsApp number. आप मेरा WhatsApp number डाल दीजिएगा 9874410935। Great. So Ananya, thank you so much. It was really very insightful. I really enjoyed the whole conversation. It was super amazing talking to you. Thank you so much for your time. You have shared a Thank you lot of so much. of your knowledge, experience, and everything. And I'm pretty sure those people who are going to watch it and those who have watched it till here, उनको काफी insights value मिली होगी इस podcast से. I'm pretty sure, damn sure about it. So once again, thank you so much. Thank you. Thank you, Mohammed. Thank you, Jay.